morning. You studied about the plant tissues, special type of the tissues. Special type of the tissue is the meristematic tissue. The second plant tissue is the permanent tissue. In case of permanent tissue, simple permanent tissue and complex permanent tissue. In simple permanent tissue, you discuss about the parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. While in case of that is the complex permanent tissue, that is the simple xylem and that is the phloem. Okay, so today we will discuss about the next tissues, and that next tissues are, that is the animal tissues. Means, try to understand, according to the cell theory, Mr. Swan and Sheldon proposed the cell theory, and according to the cell theory, the tissues of that is the plants and animals are differ from each other. So today we will discuss in details about the different type of animal tissues, and that different type of the animal tissues are mainly that animal tissues are further classified into, that is the first, epithelial tissue. Second one is connective tissue. Third one is muscular tissue, and fourth one is nervous tissue. ये चार प्रकार के सबसे इम्पोर्टेंट टिश्यूज है, जिसको हम बोलते हैं इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ओके, देन इसके आगे each and every type again further classified into different types. Today we will discuss in detail about the epithelial tissue. What is mean by the epithelial? Ep means above and thelial means layer. Means that those tissues are responsible to cover our external as well as the internal body organs. Specifically, such type of the tissues are known as, that is the epithelial tissue. So just try to understand that epithelial tissue characters of epithelial tissue. Specifically, that epithelial tissues are very much thin layered, they are single layered, they cover different body organs externally as well as internally. Externally means बाहर से उसको कवर करता है, internally means उसके अंदर का जो बॉडी ऑर्गन्स है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो है उसको इंटरनली कवर करता है. राइट, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स है, जैसा हमारा नासल कैविटी है, जैसे हमारे लंग्स के जो पार्ट है यानी अल्वियोला है, उसके बाद इंटेस्टाइन्स है, उसके बाद इसोफेगस है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है. इन सभी ऑर्गन्स को एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली ये क्या करता है, कवर करता है. नेक्स्ट, they are very much compactly arranged. Means, in the cells of that is the epithelial tissue, there is no intercellular space. They are very much compactly arranged. एक दूसरे को चिपक के ऐसे वो अरेंज होते हैं. They are living type of the cells having that nucleus as well as the prominent that is the cytoplasm. Means that cells are responsible for, that is the functionally that
first point is that they are used for the protection. Used for the protection means when they cover our body, when they cover our body externally as well as internally, they protect from the different type of the mechanical injuries as well as the entry of that is the different type of the pathogenic germs. जब हमारे बॉडी के अंदर जो पैथोजेनिक जर्म्स एंटर्ड होते हैं तो उनको रजिस्ट करने के लिए भी ये इपिथेलियल टिश्यू का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसका जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज हेल्पफुल फॉर प्रोटेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट उसका फंक्शन है दैट इज द एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन, अभी इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे एब्सॉर्प्शन का, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में काम आता है। एक्चुअली जो लैक्टियल्स होते हैं, जो विलाय होते हैं, दे आर गेट कवर्ड बाय मीन्स ऑफ द इपिथेलियल टिश्यू एंड स्पेसिफिकली such type of the epithelial tissues are helpful for the absorption of food nutrients। जब भी डाइजेशन कंप्लीट होता है तो डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद उसमें का जो भी लिक्विड कंटेंट है, जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, उसको एब्सॉर्ब करने के लिए such type of the epithelial tissues are helpful। Third function is the secretion। Third function is the secretion। Specifically, such type of the epithelial tissues are present in our endocrine glands। Endocrine glands, you know, that is the pineal body, endocrine gland, master gland, that is the pituitary gland, thymus gland, है ना, ovaries, then testes। Such type of the different type of the endocrine glands are located at different locations in our body and they functions differently and to maintain our body internally। Okay, so in such type of the endocrine glands there is also present of epithelial tissues and they are helpful for the secretion of that is the chemicals, and such type of the secretions are known as that is the hormones। Therefore they are also helpful for that is the secretion of chemicals। Next function of that is the epithelial tissue is the formation of gametes। Formation of gametes means in our sex organs, like in female there is a ovary, or in case of the male that is the testes। Specifically in science they are called as gonads, and in that gonad there is a production of female and male gametes। In case of the female there is a production of ova, and in case of the male there is a production of sperm, and such type of the male and female gametes are get produced by the germinal epithelial tissues। So this epithelial tissue also helpful for that is the production of that is the male and that is the female gamete। Okay, such type of the different functions are carried out by epithelial tissue in our body। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इपिथेलियल टिश्यू के बारे में है और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इपिथेलियल टिश्यू हैविंग नो ब्लड सप्लाई, मीन्स जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके जो ब्लड वेसल्स है दैट इज नो सप्लाई ऑफ दैट इज द ब्लड्स टू दैट इज द इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू को स्पेसिफिकली जो ब्लड वेसल्स का सप्लाई जो होता है वो नहीं होता है। Okay, this is about the some important characteristic feature of epithelial tissue and their important that is the functions of epithelial tissue। उसके बाद epithelial tissue are further classified into different types and that different types are get classified on the basis of their morphology
as well as on the basis of their location, on the basis of their function. Means these phenomena are differ from each other, and therefore on the basis of such different criteria they are get classified into, that is the first squamous epithelial tissue, second cuboidal epithelial tissue, third columnar epithelial tissue, fourth ciliated epithelial tissue, फिफ्थ सेंसरी epithelial tissue. अगर इसको ब्रॉडली अगर क्लासिफाई किया जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो टाइप है, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल में अभी मैंने जो टाइप बताए, स्क्वाइमस है, क्यूबॉइडल है, कॉलुमनार है, सिलिएटेड है, सेंसरी है, ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू। और अगर हम कंपाउंड में सोचेंगे तो उस कंपाउंड में एक स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू है और एक ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू। मगर कम से कम इसके जो कॉमन टाइप है वो हम कॉमन टाइप जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है वो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें से जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की है उसका नाम है स्क्वाइमस इपिथेलियल टिश्यू, और सेकंड जो टाइप है वो है क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। ये दो टाइप जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अभी हम पहले इस स्क्वाइमस इपिथेलियल टिश्यू के बारे में सोचेंगे, और स्क्वाइमस इपिथेलियल टिश्यू के यहाँ पे मैंने यहाँ पे एरो दिए हैं, इसको बोलते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद ये है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और ये जो है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे भी अगर सेकंड पॉइंट आप देखेंगे उसमें भी मैंने एरोज दिए हैं, उसके भी नाम सेम है। पहला जो नाम है वो है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, सेकंड नाम जो है वो न्यूक्लियस है, थर्ड वन जो है वो साइटोप्लाज्म है, और फोर्थ वन जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन। मगर नाम अगर सेम है तो भी इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। अभी वो डिफरेंस क्या है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक्चुअली जो इपिथेलियल टिश्यू के बेसिक कैरेक्टर है वो सभी बेसिक कैरेक्टर इसमें आपको दिखाई देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, स्क्वाइमस इपिथेलियम इज आल्सो नेम्ड एज दैट इज द पेवमेंट इपिथेलियम। पेवमेंट इपिथेलियम का मतलब है दे लुक लाइक टाइल्स, टाइल्स की तरह वो दिखते हैं। जो हम घर में फर्शी करते हैं, टाइल्स बिठाते हैं, उस टाइल की तरह ये दिखता है, इसके लिए इसका अनदर कॉमन नेम है दैट इज द पेवमेंट इपिथेलियम। अभी यहाँ पे हम इसका अगर स्टडी करेंगे तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे दिखाए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो सेल्स है इनके सभी के जो सेल मेम्ब्रेन्स है, सेल मेम्ब्रेन्स है दैट इज वेरी मच थिन इन नेचर, है ना। इसके जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो सबसे थिन नेचर के होते हैं, पतले होते हैं। उसके बाद दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विथ ईच अदर। अभी देखो यहाँ पे जो दो सेल है, इन दो सेल के बीच में यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, देयरफॉर इंटरसेलुलर स्पेस बिकम्स एब्सेंट, है ना। ये कहीं पे भी देख सकते हैं, सभी सेल्स एक दूसरे को अटैच है, यहाँ पे कोई भी इंटरनल स्पेस यानी इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे दिखाई नहीं देता, इसलिए दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इफ इसका ओवरव्यू आप देखेंगे ऊपर से तो ये पॉलीगोनल इन शेप और समवॉट दैट इज द राउंडेड इन शेप में आपको दिखाई देंगे। इसका एक्चुअल शेप जो है वो पॉलीगोनल इन शेप। उसके बाद ईच एंड एवरी सेल्स में, ईच एंड एवरी सेल्स में सेंटर में आपको प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखेगा, और न्यूक्लियस इज गेट सराउंडेड बाय द लिविंग मटेरियल दैट इज द साइटोप्लाज्म। इसके बाजू में इसका जो लिविंग मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये जो सेल्स का जो ग्रुप है ना,
स्क्वाइमस इपिथेलियल टिश्यू का, दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये एक सेल का ग्रुप है और ये एक्चुअली सेल का जो ग्रुप है इस बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको हम समझेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर वो स्थित है, उसके ऊपर वो इस्टेब्लिश है, राइट। इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, अभी ये जो स्क्वाइमस इपिथेलियल टिश्यूज है एक्चुअली ये सिंगल लाइन्ड होते हैं, यानी इसकी एक सिंगल लाइनिंग होती है और एक्चुअली दे आर इम्पोर्टेंट टू कवर आवर डिफरेंट इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। जैसे ब्लड वेसल्स है उसको कवर करता है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन्स है उसको कवर करता है, जैसे वो अल्वियोलाई है उसको कवर करता है ना। जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है उसको कवर करके उसको प्रोटेक्ट करने का काम एक्चुअली ये स्क्वाइमस इपिथेलियल टिश्यूज करता है। यहाँ पे उसका फंक्शन सेम है, दैट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन from the different type of the mechanical injuries, and therefore this is the first type of that is the epithelial tissue, and that is simply called as the squamous epithelial tissue, which is living in nature, specifically present in animal tissues, and they are helpful for the protection purpose, and their structure is look like this is the structure of that is the squamous epithelial tissue. The second one is called as the cuboidal epithelium। अभी इसके नाम पे ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, इसका जो मीनिंग है बेसिक वर्ड है क्यूब है, क्यूब, क्यूब का मतलब होता है ठोकरा, है ना। just observe this diagram, this is the similar length similar sized cells are get arranged and they are also very much compactly arranged। अगर इस सेल को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये सभी जो सेल्स है ये सभी सेल्स क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखते हैं, है ना। एक्चुअली ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये एक दूसरे को अटैच है ना, इंटरसेल्युलर स्पेस हियर आल्सो अगेन अपसेट। ये भी सिंगल लाइन्ड होते हैं, जो भी बॉडी ऑर्गन्स है उसको जो कवर करते हैं तो ये भी सिंगल लाइन्ड होते हैं। इसको भी ये जो सेल मेम्ब्रेन है थिन नेचर की होती है, इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है और इट इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्ड सेल्स आर गेट अरेंज्ड, गेट एस्टैब्लिश्ड, दे आर गेट प्लेस्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये लास्ट का जो पॉइंट है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। एक्चुअली ये जो टिश्यू है वो किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है उस किडनी के स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे रिनल ट्यूब्यूल्स है उसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना। उसके बाद हेनलेस लूप है, उसके अंदर आपको ये क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यूज हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं और एक्चुअली ये एब्सॉर्प्शन एज वेल एज सिक्रेशन both functions are carried out with the help of that is the cuboidal epithelial tissue. So this is the second type, just like cube like, so it is commonly called as the cuboidal epithelial tissue. This is the second type of that is the epithelial tissue in case of the animal tissue. Okay, these are the two types. In next lecture we have to continue the next types of that is the epithelial tissue. Thank you.